Hello, dear friends. Good morning to all of you. Uh, I once again welcome you in this today's morning session. And today, I have brought for you a very good poem. And the name of the poem is The Road Not Taken by a very well known poet, Robert Frost. Dear friends, this is the very first poem of your book, Bihayu, and before we hit the poem, we just have a look of how special this poem is. Dear friends, Robert Frost is one of the very well known poets of the modern era. An American poet, Robert Frost, have has all sorts of poems, but each of his poem is having a certain philosophical and ethical meaning. The road not taken particularly is a very famous poem, and it is a very much insightful and philosophical poem in the true sense. Dear friends, the main theme of this poem is that it is often impossible to see where a life altering decision will lead us. In every life, uh, in our life, we always have two choices, what to do and what not to do, or either to do this or to do this. And many a times we fail to choose a good path. So this poem is about choosing a path. Okay. Now one should make their decision swiftly and with confidence. But this is impossible. This is not always you see very much possible that you just go and take a decision. It takes time, and most of the time you are in a dilemma that what should I do, which path I should take, whether I would be an engineer, or whether I shall be a doctor, or whether I shall take a fine art degree or something. So, and most of the time we do not follow our insight, we do not follow our conscious, and most of the time we choose a wrong path. Okay, it is it is normal to wonder what the outcome would have been if the other road, the road not taken, was the road chosen. Most of the time there are two roads before you. One road, one path is a trodden path. It means लगभग सारे लोग उसी रास्ते से जा रहे हैं, और एक दूसरा रास्ता है उस पर से कोई नहीं चल रहा है. सो देर आर टू रोड्स. ओके, but to choose one path, it is very difficult, and to choose that path uh, which is not leading with someone, which is not wearing with someone,
it is very much difficult for us. Now, the road not taken particularly एक ऐसी पोएम है जो हमें एक फिलोसॉफिकल मैसेज हमको देती है. देखिए, एक सिंपल सी आइडिया इस पोएम में. दो रास्ते हैं. ओके, एक मिनट. एक सेकेंड, 1 मिनट प्लीज. दो रास्ते हैं और उसमें से एक रास्ता जो है आपको चुनना है. तो पोएट बोलता है कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे. तो दो रास्ते कौन से हैं. एक रास्ता वो है जिस पर से बहुत लोग चल रहे हैं. ओके, ट्रॉडन पाथ, ट्रॉडन एक शब्द उसने यूज किया है इसमें. और एक रास्ता है बड़ा पथरीला, कांटे पड़े उसके ऊपर, उसको कोई यूज नहीं कर रहा है, उस रास्ते पर से कोई नहीं जा रहा है. दूसरा रास्ता वो है. तो पोएट सोचता है, सोचता है, सोचता है, बहुत सोचता है. पूरी पोएम जो है, दो स्टांजे उसी के ऊपर है कि बहुत सोचता है कि मैं कौन सा रास्ता चुनूं. और लास्ट में वो एक ऐसा रास्ता चुनता है जिससे सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं. ट्विस्टिंग एंड इज देयर इन दिस पोएम. सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस तरीके की पोएट्री के लिए बड़े फेमस है. फिलोसॉफिकल पोएट्री रहती है और उनके पोएम से कोई ना कोई मैसेज हमको मिलता है. सो वी विल सी द रोड नॉट टेकन. सो there is the road which is not taken, and this is the poem by Robert Frost, the American poet. तो हम देखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है. देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1874 टू 1963 में उनकी डेथ हुई. 1874 में जन्म हुआ. ओके. रॉबर्ट फ्रॉस्ट was an American poet and the winner of 4 Pulitzer Prizes. Famous works include Fire and Ice, Mending Wall, Birches, आउट आउट, नथिंग गोल्ड कैन स्टे एंड होम ब्यूरियल. ये उनकी बुक्स है. हिज 1916 पोएम द रोड नॉट टेकन इज ऑफन read at graduation ceremonies across the United States. दुनिया भर के सेरेमनीज में रोड नॉट टेकन को जो है ग्रेजुएशन सेरेमनीज में, पर्टिकुलरली ग्रेजुएशन सेरेमनी का मतलब आप समझते हैं, जब बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है उस समय उसको एक डिसीजन लेना होता है कि अब वो कौन सा रास्ता चुनेगा. एक नौकरी वाला रास्ता चुनेगा, अच्छा रास्ता चुनेगा, बुरा रास्ता चुनेगा. मतलब उसके सामने एक डिसीजन का समय वो रहता है. तो वहाँ पर जो इस पोएम को बोलते हैं, पढ़ा जाता है. ठीक है. एज स्पेशल गेस्ट एट प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडीज इनॉग्रेशन, फ्रॉस्ट बिकेम ए पोएटिक फोर्स एंड द अनऑफिशियल पोएट लॉरिएट ऑफ द यूनाइटेड States. Okay. Now the road not taken. This well-known poem is about making choices. काय के बारे में है पोएम? मेकिंग चॉइसेस के बारे में. हमारे जीवन में कई सारे चॉइसेस आते हैं, उनको हम कैसे चूज करते हैं. चूज का नाउन है चॉइस. हाँ, चॉइस कोई वर्ब नहीं है, ध्यान में रखना. एंड द चॉइसेस दैट शेप अस. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है और वो बड़े सिंपली लिखते हैं, लेकिन बड़ा इंसाइटफुल मीनिंग उनके अंदर होता है. अबाउट वेरी मच कॉमन थिंग, जैसा कौन सा रास्ता हमको चुनना है. एक उनकी पोएम है मेंडिंग वॉल. मेंडिंग वॉल का मतलब होता है जो दो घरों के बीच में जो दीवार होती है पड़ोसियों के बीच में, उसको मान लीजिए मेंडिंग वॉल बोलती है. तो उसके ऊपर उन्होंने मेंडिंग वॉल पोएम लिखी जो बड़ी फेमस है ना. उसमें उनकी एक लाइन है, वो बोलते हैं कि दीवार है ना, गुड वॉल्स मेक गुड नेबर्स. बड़ी अजीब सी फीलिंग जो है उस पोएम में थी, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज उसमें था कि जितनी दूरी आप अपने सगे संबंधियों से रखेंगे, आसपास के लोगों से रखेंगे,
उतना आपका स्नेह जो इनके प्रति बढ़ेगा। मेंडिंग वॉल का एक अलग थीम था। तो इंसाइटफुल उनकी पोएम्स होती है अबाउट कॉमन एंड ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। तो देखते हैं हम। सो द रोड नॉट टेकन, द रोड सिंबलाइजेस लाइफ एंड द चॉइसेस दैट वी मेक। तो ये रोड जो है हमारे चॉइस का सिंबल है, क्या चॉइस हम करते हैं। वेन द रोड स्प्लिट्स इनटू टू, जब रास्ता दो भागों में बट जाता है, द पोएट इज रिक्वायर्ड टू मेक डिसीजन विथ लिटिल नॉलेज ऑफ व्हाट ले अहेड। तो उसको कभी कभी हमको हमारे जीवन में बड़े कम समय में जो है ये डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है ना। कई बार हमारे पास उतना समय नहीं होता। तो इंट्रोडक्शन देखिए पोएम का क्या है। इन द पोएम द रोड नॉट टेकन, द रोड सिंबलाइजेस आवर लाइफ। द पोएट सेज दैट द पाथ दैट वी डोंट चूज in our life is the road not taken. He describes his feeling about that choice that he had felt in the past. The path which we have chosen decides our future, our destination. Destination मतलब ध्येय, उद्देश्य, aim. The important message that the poet wants to give is that the choice that we make has an impact on our future. Impact का मतलब होता है दोस्तों प्रभाव। And if we make a wrong choice, we regret it but cannot go back on it. अगर हमने wrong choice कर ली तो फ्यूचर में हमें रिग्रेट हो सकता है। So we must be wise while making choices. ये पोएम का इंट्रोडक्शन है और एक मैसेज हमको मिलता है कि हमको किस तरीके का डिसीजन लेना चाहिए। अब सिंपल सी बात रोड नॉट टेकन के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि दो रास्ते हैं। एक रास्ते पर कई लोग चल रहे हैं और बड़ा साफ सुथरा रास्ता हुआ है, तो एक नॉर्मल व्यक्ति होगा उसी रास्ते पर चलेगा, उसी रास्ते पर वो आगे बढ़ेगा। दूसरा रास्ता है उस पर से कोई नहीं चल रहा। अब ये दो रास्ते कौन से? एक रास्ता जो खूबसूरत दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, फेयर दिख रहा है, लिटरली वो फेयर नहीं है, वो बेईमानी वाला रास्ता है, वो बदमाशी वाला रास्ता है, वो शॉर्टकट वाला रास्ता है। हमारे जीवन में शॉर्टकट वाला रास्ता है। जैसा पैसा कमाना है तो चोरी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे और जीवन में जो है हम आगे बढ़ेंगे। एग्ज़ाम में हार्डवर्क नहीं करेंगे और चीटिंग करेंगे, तो ये वो रास्ता है। और पोएट देखता है एक जगह खड़े रह के कि अरे इस रास्ते पर तो सभी लोग चल रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी इसी रास्ते से चलूं। फिर वो देखता है दूसरे रास्ते की तरफ। तो दूसरा रास्ता कौन सा है? ये दूसरा रास्ता जो है इस पर से कोई नहीं चल रहा है, तो एक कौन सा रास्ता है ये? यह रास्ता ईमानदारी का रास्ता। फेयर नहीं है वो। फेयर नहीं है मतलब जो जिस तरीके का एक खूबसूरत रास्ता है ना वैसा वो नहीं है। लेकिन इसमें जो भेद देखिए कैसा है, इसमें फर्क देखिए कैसा है। उसके फर्क ये है क्योंकि उस रास्ते पर से कोई नहीं चल रहा है, इसलिए वो पथरीला है, कांटे पड़े हैं, घास उगी उसके ऊपर खूब सारी, ग्रासी है वो रोड, कोई नहीं चल रहा उसके ऊपर। लेकिन लास्ट में जब डिसीजन लेने की बारी आती है तो पोएट को एक डिसीजन लेना पड़ता है। वो खड़ा रहता है उस जगह पर आकर जहाँ से दो रास्ते, एक सच्चाई वाला, एक बुराई वाला रास्ता है और एक सच्चाई वाला रास्ता है। सच्चाई वाला रास्ता बड़ा कठिन है, उस पर से कोई नहीं चल रहा है, और वो जब चल पड़ेगा तो उसके पच्चुन्नों के ऊपर पीछे से कोई आएगा कि नहीं आएगा उसको पूरा डाउट है। फिर भी ये पोएम हमको बताती है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है और हमें किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। वो भेड़ चाल वाला रास्ता बोलते हैं ना, भेड़ चाल। एक भेड़ चल रही है, उसके पीछे सब लोग चल रहे हैं, बिना अपना दिमाग को जो है घर पर रख दिया है ना, बिना सोचे समझे उसी के पीछे सब लोग चल दिए। या ये दूसरा रास्ता हमको चुनना चाहिए।
नाउ सी, थोड़ा ये पढ़ लेना आप सब लोग. दिस वेल नोन पोएम अबाउट मेकिंग चॉइसेस that shape our future. Robert Frost is an American poet who writes insightfully about common ordinary experiences of life. He is known for his realistic depictions of daily life. This poem describes the poet who is standing at a junction, मतलब point, in the road in a yellow wood. He is uncertain which road he should take. The poet has used the road as a metaphor for the journey of life. उसने जो है इस रोड का यूज किया है, उसको मेटाफर मानता है फॉर जर्नी ऑफ लाइफ. The poet tells that he was at a junction in the road in a yellow wood. He is sorry that he could not travel both roads and become one traveler of one road. He stood to decide which road he should take. He looked down one road as far as he could and see it bent into the undergrowth. तो पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन है ये, थोड़ा आगे हम देखते हैं. ओके, सो पहली लाइन ना, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड. देखिए डाइवर्ज का मतलब क्या होता है. देखिए ये रास्ता है, यहाँ पे मान लीजिए ये व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और यहाँ से एक रास्ता जा रहा है और यहाँ से एक रास्ता जा रहा है. ठीक, अब देखिए, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड. डाइवर्ज समझते हैं, डाइवर्जन है भेद कर देना, इसको बोलते हैं डाइवर्जन. दिस इज डाइवर्जन. इन ए येलो वुड, वुड है ना जंगल, वुड है ना फॉरेस्ट. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. पोएट जो है सॉरी कहता है, अपोलॉजी अपनी प्रेजेंट करता है और बोलता है सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता. एंड बी वन ट्रेवलर. लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड. और एक ट्रेवलर बनकर मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ, मतलब जीवन के हर घड़ी में, जीवन, हमारा जीवन, एक व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति जो है एक ट्रेवलर है. हमेशा अपने जीवन में उसको डिसीजन लेना पड़ता है, इस रास्ते से जाना है या इस रास्ते से जाना है. इसलिए उसने क्या यूज किया है यहाँ पे वर्ड, यहाँ पे वर्ड उसने यूज किया है लॉन्ग I stood and looked down at one as far as I could. और हर एक रास्ते को निहार कर देख रहा है, दोनों में से, दोनों रास्ते को. To where it bent in the undergrowth. और वो सोचता है कि ये रास्ता किस तरफ मुझे ले जाएगा. देखिए डाइवर्स का मतलब होता है सेपरेटेड. ओके, येलो वुड का मतलब यहाँ फॉरेस्ट विद डिकम्पोजिंग लीव्स है ना, येलो वुड्स, येलो, येलो कलर के वुड्स. और अंडरग्रोथ का मतलब होता है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस, मीन्स द फॉरेस्ट. ओके, मतलब खूब सारे, वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. ओके, मतलब एक रास्ता उसको नजर आया, एक ट्रैवलर बनकर वो देख रहा है, एक रास्ता है, अंडर ग्रोथ है, बहुत सारा जो है बुशेस, बहुत सारे जो है उसके ऊपर कांटे, पौधे, सब सारे घास उगी हुई है. आगे बोलता है, देखिए ट्रैवलर है, उसके सामने दो रास्ते हैं. ठीक है, थोड़ा फाइन रोड बन गया है ना. तो इसका है, वंस द पोएट वॉज वॉकिंग डाउन ए रोड and then there was diversion. There were two different paths and he had to choose one out of them. The poet says that as he was one person, he could travel on one road only. He had to choose one out of these two roads. Yellow wood means the forest with leaves which are wearing out and they have turned yellow in color. The season of autumn. ये autumnal सीजन की बात कर रहा है वो. ऑटम का सीजन है, पतझड़ भी कुछ कुछ हो रही है थोड़ी थोड़ी. It represents a world which is full of people, where people have been living for many years. They represent people who are older than the poet,
The poet kept standing there and looked at the path very carefully, as far as he could see it. Before taking the path, he wanted to know how it was. आगे. Then took the other. फिर वो अंडरग्रोथ वाला एक रास्ता है और देन उसका वो दूसरे रास्ते पर ध्यान जाता है. ठीक है ना. दूसरा रास्ता. ठीक है, ये ट्रैवलर है. ठीक, एक रास्ता है, वो बड़ा कोई नहीं चल रहा है इस रास्ते पर और इस रास्ते पर सब लोग चल रहे हैं, है ना. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर. बड़ा फेयर लग रहा है वो, सुंदर. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. और उसका क्लेम ज़्यादा है, बेटर क्लेम कर रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग उस पर से चल रहे हैं. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, दो as far that the passing there had warned them really about the same. Means the poet says that both the paths were similar that morning. दोनों एक जैसे दिख रहे हैं रास्ते. Both had leaves on them. दोनों पे पत्ते पड़े हैं. And no one had stepped on them as they were still green in color. Okay. He decided that that day he would take one path and keep the other path for another day. तो उस दिन डिसाइड करता है कि वो एक रास्ता कोई चुनेगा और एक रास्ते को दूसरे दिन के लिए रखेगा. Although he knew that one way leads on to another way. उसको पता भी है कि एक रास्ते पर जब वो चल पड़ेगा तो अपने आप जो है लोग उसके पीछे आ जाएंगे. He knew that he could not go back on the choice that he had made. Similarly, even in our life, once we choose an option, we must keep on moving ahead with that option, and we never get a chance to come back and take the other option that we have left earlier. इसीलिए वो बोलता है, though as for that the passing there had warned them really about the same. had worn का मतलब यहाँ पे होता है used. wear का यूज यहाँ पे किया है. wear का मतलब यूज करना होता है. ओके. तो बोलता है अगर मैं एक दो ऑप्शन मेरे सामने है और एक ऑप्शन जब मैं चुन लूंगा और उस रास्ते पर मैं जब चल पड़ूंगा तो उस रास्ते पर मैं बिल्कुल भी बाद में वापस नहीं आ पाऊंगा. मुझे उसी रास्ते का जो है उसी रास्ते पर फॉलो करना पड़ेगा, उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा. देन फेयर का मतलब होता है एज गुड एज द अदर वन. क्लेम का मतलब होता है बेटर ऑप्शन. ग्रासी यानी अनयूज्ड. ग्रासी का मतलब यहाँ पे अनयूज रास्ता है वो. एंड वांटेड वेयर मतलब हैड नॉट बीन यूज्ड. अभी तक उसको यूज किसी ने नहीं किया है. मतलब दो रास्ते हैं, एक अनयूज्ड है और एक थोड़ा सा फेयर है. ओके. आगे देखिए ग्रासी रोड की तस्वीर यहाँ पे है. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन ल्यूज नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. दोनों रास्ते वहां पर है. देखिए ले जो है ना, ले क्या है, लाए का पास्ट टेंस है. लाए फर्स्ट फॉर्म है, ले सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है लेड या लेन. ओके. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले. दोनों रास्ते वहीं पर पड़े हैं. इन ल्यूज नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. और दोनों रास्ते पर कोई स्टेप अभी तक नहीं हुआ है. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे. आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक. तो एक रास्ता मैंने पहले दिन चुना और मैं जानता था कि मैं जो रास्ता चुन रहा हूँ वो जब रास्ता मैंने चुन लिया तो उसी पर मैं आगे बढ़ूंगा. और वो डाउट करने लगा. किस बात का डाउट करने लगा? कि इफ़ आई शुड एवर कम बैक. इस रास्ते पर, जिस रास्ते पर मैं निकल पड़ा हूँ उस रास्ते से मैं वापस आ पाऊंगा भी कि नहीं आ पाऊंगा. देखिए क्या बोलते हैं.
The poet kept on looking at one path for a long time to check if it is the right path for him or not, and then he decided and started walking on another path because he felt that the both paths were equally good. He said just as fair, so he felt that both paths were equally good and started walking on one of them. He adds that maybe he felt that the path was better for him, so he chooses it as it had grass on it, and which means that it was unused. Not many people had walked on this path earlier. That is why this path was grassy. वो रास्ता ग्रासी क्यों है? क्योंकि उस रास्ते पर कोई भी नहीं चला है. And wanted where means that it was not walked over by many people. After he walked on the path for some distance, he realized that both the paths had been worn out the same way. Both the paths were similar and worn out. Even in our life, we take any path or option, but all of them have the same benefits, disadvantages, problems, challenges, and we must face them. We think that we are choosing a better option, but it is not that way. फिर वो क्या करता है? दो रास्ते उसके सामने है, तो चुनना कौन सा है? आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साय. बोलता है मैं बड़े पेनफुल, विथ ए साय का मतलब यहाँ पे देखिए, यस, विथ ए साय मीन्स with intense, you see, closeness, with intensity, with hard feelings. I am telling this. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages since. वो बोलता है, बात करता है कि somewhere ages and ages since, मतलब बरसों से ये प्रॉब्लम जो है लोगों के सामने आ रहा है. क्या? टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए वुड. हमारे सामने हमेशा दो रास्ते मिलेंगे, लेकिन मैंने क्या किया, मैं क्या करूँगा. एंड आई, मैंने क्या किया, दो रास्तों में से कौन सा रास्ता चुना? आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय. मैंने वो रास्ता चुना जिस पर आज तक बहुत कम लोग चले थे, या जिस पर आज तक कोई भी नहीं चला था. And that has made all the difference. So this is the key lines of this poem. I took the one less traveled by, and that has made all the difference. This is the very fine poem by Robert Frost. And look at the last lines. कितनी वंडरफुल लाइन्स है लास्ट की, कि मैंने वो रास्ता चुना, दोनों रास्ते मेरे सामने हैं, और एक रास्ता जिस पर से कई लोग चल रहे हैं वो परहैप्स बेटर क्लेम है, बेटर ऑप्शन है मेरे लिए, मुझे ज़्यादा तकलीफ उस रास्ते पर नहीं होगी, लेकिन मैंने वो रास्ता चुना जिस पर से बहुत कम लोग चलते हैं. एंड दैट हैज़ मेड ऑल दी डिफरेंस. और वो बोलता है कि उससे फ़र्क पड़ने वाला है, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, समाज के लिए कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, मेरे खुद के लिए कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, अगर मैं बाकी लोगों जैसा एक ही रास्ता मैं चुनता हूँ. देखिए क्या बोलता है. He says that in the future he will take a deep breath and say that once upon a time he had reached such a point in life that there were two options for him, and he travelled on that road which had been travelled upon by lesser number of people. The decision of his decided his future. Similarly, in future, when you grow up, then you will say that once upon a time, when you were young, you had two options. The choice that you made you what you became of it. This is a very strong message for all students, that you should be wise and be careful while making choices out of the options that you have in your life, because your future,
डिपेंड्स ऑन द चॉइस दैट यू मेक टुडे। और इसमें सर्टेन ब्रेवरी लगती है, एक ब्रेव हार्ट आपका होना चाहिए, तभी जो है ऐसा कोई डिसीजन आप ले सकते हैं जो और कोई नहीं ले रहा है। Was it suitable for him or no? He was able to see the path till from where it curved, after which it was covered with trees and was hidden. कई बार ऐसा रास्ता है, वो रास्ते पर कोई नहीं चल रहा है, हिडन रास्ता है वो, तो उस रास्ते को खोज कर आपको उस रास्ते पर चलना होगा। It happens in our life also when we have choices, we have alternatives, but we have to choose only one out of them. We take time to think about pros and cons, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स, उसमें से हम एक रास्ता को हम लोग चुनना पड़ता है, वेदर इट इज सुटेबल फॉर अस और नॉट, एंड ओनली देन वी टेक ए डिसीजन ऑन व्हाट पाथ वी शुड चूज। तो लास्ट लाइन इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। इसका मतलब ये है कि दैट द पोएट टुक द पाथ दैट नो वन एल्स डिड। पोएट ने वो रास्ता चुना जिस पर आजकल कोई भी नहीं चला है। आप इतिहास उठाकर देखिए दोस्तों, हर एक वो व्यक्ति जो महान बना है उसने हमेशा अपने जीवन में वही रास्ता चुना है जो बाकी लोगों ने नहीं चुना था। आपको मैं अगर इसको और एक्सप्लेन करके बताऊं तो आपके सामने महात्मा गांधी की स्टोरी है। महात्मा गांधी आप देखिए, जोहान्सबर्ग, वो साउथ अफ्रीका में गए थे। एक वो लॉयर थे, एक केस के सिलसिले में। एक लॉयर ज़रूर थे वो, लेकिन साउथ अफ्रीका में उस समय अंग्रेज़ों का राज था, गोरे लोगों का राज था, वहीं के गोरे लोगों का राज था। काले लोग वहाँ के गुलाम थे और बाहर से आने वाले इंडियन लोगों को भी वो गुलाम अपना मानते थे। तो उन्होंने एक टिकट मंगवाई पोस्ट से और उनको फर्स्ट क्लास का टिकट मिल गया, एंड ही वॉज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स जोहान्सबर्ग। तो अचानक से कुली ने उनको देख लिया और कुली मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड टू द टीसी। टीसी को इन्फॉर्म किया गया कि फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में एक इंडियन आदमी बैठा है। तो वो टीसी वहाँ पर आए, वो अधिकारी वहाँ पर आए और उन्होंने महात्मा गांधी से कहा कि तुम यहाँ से उतर जाओ। तो महात्मा गांधी ने कहा कि अरे मैं तो लॉयर हूँ, मैं केस के सिलसिले में आया हूँ, मैं तो एलीट क्लास को बिलोंग करता हूँ, है ना, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। तो उसने कहा आप जितने भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप हमारे नज़र में क्या है, एक ब्लैक व्यक्ति है, और आपको जो है इस फर्स्ट क्लास में सफ़र करने का अधिकार नहीं था। और बीच रास्ते में एक छोटे से स्टेशन के ऊपर जो है, आज उस स्टेशन को महात्मा गांधी का नाम दिया गया है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जिस स्टेशन पर उनका सामान को फेंका गया था, और सामान को उनके फेंका गया और उनको बाहर धकेल दिया गया और कहा गया कि आप फर्स्ट क्लास में नहीं चल सकते। ये जो सिचुएशन महात्मा गांधी के साथ साउथ अफ्रीका में घटी थी, ये हजारों लोगों के साथ पहले भी घटी होगी। कई लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, बुरा व्यवहार वहाँ पे हुआ होगा, लेकिन सभी ने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई क्या? तो इसका जवाब है नहीं। सभी ने वो रास्ता चुना क्या जो महात्मा गांधी ने चुना? इसका जवाब है नहीं। उन्होंने वो रास्ता चुना जैसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पे कहा, लेस ट्रैवल्ड बाय, जिस पर बहुत कम लोग चलते हैं, और वो रास्ता था अन्याय के खिलाफ खड़े होने का। सबके अंदर वो साहस नहीं होता। उन्होंने अपना जो गुस्सा था, उनके अंदर जो ग्लानि आई थी, उन्होंने जो अपमान झेला था, उस अपमान का बदला उस टीसी पर, उस अधिकारी पर उन्होंने नहीं उठाया। उस अधिकारी पर उन्होंने अपना बदला नहीं लिया, उसको गाली गलौज उन्होंने नहीं की, क्योंकि वो जानते थे वो भी एक सिस्टम का हिस्सा है और वो अधिकारी उनके खिलाफ नहीं है, तो व्यवस्था उनके खिलाफ है। तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने
सारे इंडियंस लोगों को कलेक्ट किया, जमा किया, एकत्रित किया और साउथ अफ्रीका में भारतीय लोग जो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर थे उनको अधिकार दिलाए। तो ये रास्ता जो उन्होंने चुना अन्याय के खिलाफ लड़ने का साउथ अफ्रीका में, और बाद में भारत में आने के बाद भारत में सभी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है क्या? नहीं। वो 5-10% लोगों ने आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी है जिनको आज हम याद रखते हैं। तो उन्होंने वो रास्ता चुना है, लेस ट्रेवल्ड बाय। तो वो बात रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे हमको बोल रहे हैं कि एंड दैट हैज़ मेड ऑल दी डिफरेंस। ये जो है सारा डिफरेंस क्रिएट करता है जब आप वो रास्ता चुनते हैं जो किसी ने भी नहीं चुना है, अच्छाई का रास्ता, सच्चाई का रास्ता, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला रास्ता। The poet took the path that no one else did, and that is what has made the difference in his life, that has made him successful. However, a difference could mean success और अटर फेल्यूर ऑल्सो। तो डिफरेंस चुनने में दोनों चीज़ें हो सकती है आपके जीवन में, लेकिन आप जीवन में अगर डटे रहेंगे, साहस के साथ हर कठिनाई का सामना करेंगे, तो इट विल ब्रिंग prosperity and happiness to your life also. So these are some, you see, glossary here, and thank you so much. This is the class by me, Milind Jamnekar, PGT English, and you can follow me. You can watch my videos also on YouTube, and we will be with you. I shall be with you with the exercise of the same lesson in the next lecture. So thank you very much.